हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है, आज का वीडियो जो है वो लेंथी होने वाला है, लेकिन एक वीडियो में मैं 4-5 कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देख लेना। आपको अगर सी प्लस प्लस में एक आज का जो टॉपिक है वो अगर पूरा समझना है तो प्रॉपर देखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये अभी मत सोचना। ये आपको एक आधे घंटे बाद पता चलेगा कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा सी प्लस प्लस सीखने के लिए। ये ऑलरेडी मैंने क्लास लिख के रखा है। दिस इज द क्लास इन विच वी हैव रुपीज पैसे, टोटल पैसे एज अ मेंबर वेरिएबल्स, वन कैलकुलेट मेंबर फंक्शन और यू कैन से मेथड in which we are calculating total paise as rupees multiplied by 100 plus paise. 100 paise means 1 rupees. In read money, we are reading values for rupees and paise. We are calculating total paise, and in show money time being I am displaying only total paise. In a main program, यहाँ मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ मैं बाद में लिखूंगा. In a main program, when this statement is executed, your compiler will create one object m1 with rupees, paise and total paise as a member variables. m1 dot read money, it will go to execute read money with respect to m1. So it will give you input rupees and paise. Scene will give a blinking cursor. You have to input two values. If you input 6 and 30, 6 will be given to rupees, 30 will be given to paise, of whom? That is of m1. So 6 and 30. Calculate, it will go to execute calculate. It will calculate total paise. Whose total paise? That is of m1. Calculate ends, it will come back to the read money. Read money ends, it will come back to the main program. m1 dot show money, it will go to execute show money. It will display total paise equal to tps. Whose tps? That is m1 tps. What is m1 tps? 630. So this will display 630. Okay. Whenever it will try to execute a member function, and when it is just a member function, rs, ps, tps, tps, they all consider from a calling object compulsion. Now, if I create one more object, m2. So now compiler create one more object. Okay, I will take here m2, in which it will create rs, ps and tps as a member variables. I can write here m2 dot read money, m2 dot show money. Now initially m1 is created, then m2 will be created. m1 dot read money, it will go to execute read money with respect to m1. You have to input value for rs and ps. If I input 5 and 80, so it will give here 5 and 80 of m1. We have two objects m1 and m2. अपने पास दो objects है m1 and m2, लेकिन हम लोगों ने read money कॉल किया है with respect to m1. तो इसके लिए इसके जो भी वेरिएबल्स है वो सारे m1 के कंसिडर करेंगे, एंड इट विल कैलकुलेट टोटल पैसे. वो टोटल पैसे कैलकुलेट करेगा. इन एंड ऑफ द कैलकुलेट रीड मनी, एंड ऑफ द रीड मनी ये वापस यहाँ आएगा. फिर m2 डॉट रीड मनी, अभी फिर से रीड मनी कॉल करेगा, लेकिन कॉल करने वाला कौन है? m2 है. m2 ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग. सो इसमें जितने भी मेंबर वेरिएबल्स है वो सारे m2 के होंगे. पहले m1 के थे, अब m2 के हैं. तो फिर से यहाँ आएगा रीड मनी, इनपुट रुपीज पैसे. सीन आपको ब्लिंकिंग कर्सर देगा. आपको दो वैल्यूज इनपुट करने पड़ेंगे. सपोज आपने इनपुट किया 10 और 40, तो 10 विल बी गिवन टू रुपीज ऑफ m2, क्योंकि हमने m2 के हिसाब से कॉल किया है. फिर 40 यहाँ देगा पैसे को. कैलकुलेट, इट विल गो टू एग्जीक्यूट कैलकुलेट.
टोटल पैसे इज रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस पैसे। किसके कॉल करेगा? M2 के। किसके कैलकुलेट करेगा? M2 के कैलकुलेट करेगा। एंड इट विल कम बैक M1 डॉट शो मनी टोटल पैसे किसने कॉल किया है? M1 ने। तो TPS of M1 580। एंड ऑफ द मेंबर फंक्शन इट विल कम बैक M2 डॉट शो मनी। फिर से जाएगा शो मनी, किसका डिस्प्ले करेगा? M2 का डिस्प्ले करेगा। क्लियर? दो ऑब्जेक्ट्स किए हैं, दोनों के वैल्यूज रीड की है और दोनों का वैल्यूज डिस्प्ले किया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, M1 comma M2 M1 dot read money, it will go to execute read। okay, rupees पैसे if we input 4 and 80, so that is 4 and 80, calculate, it will calculate 480, वापस आएगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, M2 equal to M1, ये allowed, this is allowed, M2 equal to M1, तो M1 की जो भी वैल्यूज है वो M2 की दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब सिंपल भाषा में समझा दो, डोंट डोंट गो इनटू द मेमोरी एंड ऑल, मेमोरी में क्या होता है, कैसे होता है, ये एड्रेस क्या है, ये उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ सिंपल पता करना है। तो M2 इक्वल टू M1, इसका मतलब है M1 के जो भी मेंबर वेरिएबल्स है उनकी सारों की वैल्यू M2 के मेंबर वेरिएबल्स को दी जाएगी। तो 4 विल बी गिवन टू दिस 80 and 480, and then if I give M2 dot शो मनी टोटल पैसे को किसके प्रिंट करेगा? M2 के प्रिंट करेगा। M2 क्या है? 480, so it will give 480। तो एक ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, और जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देते हैं, इसका मतलब है जो सोर्स के मेंबर वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज डेस्टिनेशन के मेंबर वेरिएबल्स को दी जाएगी। एक की मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज लेके दूसरे को मेंबर वेरिएबल्स को दी जाएगी। इतना ही समझना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। M2 इक्वल टू M1, इसका मतलब M1 के मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज M2 के मेंबर वेरिएबल्स को दी जाएगी। इतना ही समझना है, इसलिए वो वैल्यूज ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, ये मत सोचना कि ये संग्राम सर क्यों पढ़ा रहा है, वो आपको आधे घंटे बाद समझ आएगा, आधे या पौना घंटे के बाद समझ आएगा ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। सिर्फ समझ लेना भैया, समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ मैं अलग से वैल्यू देता हूँ। सपोज हमने इनपुट किए 630 630, ठीक है, मैंने किया M1 डॉट शो मनी। ठीक है, अब M1 डॉट शो मनी क्या डिस्प्ले करेगा? शो मनी जाएगा, M1 की वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? टोटल पैसे। M1 के टोटल पैसे कितने? 480, सो दिस विल डिस्प्ले 480। अब यहाँ मैंने ले लिया M2 डॉट शो मनी, किसकी वैल्यूज डिस्प्ले करेगा? TPS M2। ये हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की ही वैल्यू डिस्प्ले करता है, दैट इज 630। अगर सपोज मैंने ऐसे किया, गो टू एग्जीक्यूट, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, शो मनी एग्जीक्यूट करने के लिए जाओ विथ रिस्पेक्ट टू M1, तो ये टोटल पैसे किसके आएंगे? M1 के टोटल पैसे आएंगे। अब मैं यहाँ देता हूँ M2, so go to execute show money with respect to M1, pass value M2। अब वैल्यू पास कर रहे हो तो वैल्यू रिसीव करनी भी बहुत जरूरी है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग।
ठीक है, तो वही मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ। इफ यू आर पासिंग अ वैल्यू देन यू हैव टू रिसीव अ वैल्यू, so we are passing a single value, so we have to receive a single value. तो मैंने वैल्यू क्या कंसिडर किया, m, we are passing value of m2, we are receiving into the m। अब जिसकी वैल्यू पास कर रहे हो, जिसमें रिसीव कर रहे हो, वो दोनों का डेटा टाइप सेम होना बहुत जरूरी है। अब m2 is the object which we have created from money class, so m must be a object which we have to create from a money class। अब जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर यहाँ आएगा और ये m ऑब्जेक्ट किया जाएगा, इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और उसको वैल्यू कहाँ से आएगी, m2 से आएगी। सो इनडायरेक्टली इट इज नथिंग बट m इक्वल टू m1। ठीक है, तो m2 की सारी वैल्यू जो है वो m को दी जाएगी, लाइक दिस। ऑल वैल्यूज ऑफ m2 विल बी गिवन टू m नाउ। सी आउट टोटल इज इक्वल टू tps, इसे किसने कॉल किया है, m1 ने कॉल किया है, तो m1 के टोटल पैसे प्रिंट करेगा। और हम लोगों ने यहाँ ऐसे किया, अगर ऐसे स्टेटमेंट हम लोगों ने ऐड किया तो अभी क्या करेगा, टोटल पैसे इक्वल टू m डॉट tps। m के पैसे कहाँ से आए हैं, m2 से, उसकी वैल्यू क्या है 630। सो दिस विल प्रिंट यू टोटल पैसे इक्वल टू 630 एंड देन टोटल पैसे इक्वल टू ओनली tps। इसका मतलब कॉलिंग किसने किया है, m1 से कॉल किया, सो इट इज अ 480। सो दिस विल गिव यू टोटल पैसे इक्वल टू 630 and this will give you total पैसे equal to 480। हम लोग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ये यहाँ लिया है, वी कैन पास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर दैट आई एम रिसीविंग हियर। चेक कर लेना, समझ लिखना, समझ आता है कि ठीक है। जैसे हम लोग वैल्यू पास, वेरिएबल पास करते हैं सी में, या फिर इसके पहले के मेरे वीडियोज है, पासिंग वैल्यू, रिटर्निंग वैल्यू, टू एंड फ्रॉम मेंबर फंक्शन, वो चेक कर लेना। तो जैसे हम लोग वैल्यूज पास कर सकते हैं, वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। शो मनी विथ रिस्पेक्ट टू m1 पास m2, m2 किया है m में, और ये हम लोगों ने किया है। समझ आए? देखो भैया, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत है, वो सब मत छोड़ देना, वो सब छोड़ देना, अभी मत कर। सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ वो देख लो, क्यों कर रहा हूँ, उसका यूज क्या है, करने की जरूरत है क्या, यह हमें बाद में पता चलेगा। करने की जरूरत है इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर आपको सिखा रहा हूँ, वरना सिखाने की जरूरत ही नहीं थी ना। ठीक है, अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ तक आएंगे, m डॉट शो मी m2, m2 वैल्यू पास होगी, m में आ जाएगी, m की वैल्यू दी हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, इंटीजर t इक्वल टू tps प्लस m डॉट tps, तो ये वेरिएबल बन जाएगा एक t।
टी लोकल वेरिएबल बन जाएगा जो सिर्फ इसके लिए काम आएगा, इसी में काम आएगा, बाहर कोई काम नहीं आएगा, दैट इज अ लोकल वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या है, टीपीएस प्लस एम डॉट टीपीएस, ओनली टीपीएस। शो को किसने कॉल किया है, M1 ने कॉल किया। M1 के टीपीएस क्या है, 480, दिस इज 480 प्लस m डॉट टीपीएस, so 480 plus 630, so that value of 1 will be 1110, and then it will give you total price equal to total price equal to 1110। ये टोटल पैसे और ये टोटल दो पैसे ऐड करके ये आता है, क्योंकि यहाँ टीपीएस M1 के टीपीएस m डॉट टीपीएस M2 के टीपीएस, तो M1 के टोटल पैसे और M2 के टोटल पैसे वो ऐड करके आ जाएगा रिजल्ट टी में। समझ आया, देख लेना फिर से एक बार। M1 डॉट रीड मनी, M1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। M2 डॉट रीड मनी, M2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। M1 डॉट शो मनी विथ टेक वैल्यू ऑफ M2, M2 यहाँ M1 में M में आ जाएगा, तो M की वैल्यू M2 की वैल्यू M में आ जाएगी। उसके बाद TPS, M1 के TPS प्लस M2 के TPS ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा रिजल्ट टी में, और टी के टोटल पैसे डिस्प्ले। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ इंटीजर r इक्वल टू टी डिवीजन 100 एंड इंटीजर p इक्वल टू टी मॉड 100। ठीक है, ठीक है, तो t की वैल्यू तो ये आ जाएगी। उसके बाद r कैलकुलेट करेगा, r की वैल्यू आ जाएगी 11 और p की वैल्यू आ जाएगी 10, और फिर यहाँ वो प्रिंट करेंगे हम लोग रुपीज इक्वल टू r पैसे इक्वल टू p, टोटल पैसे इक्वल टू t, एंड ऑफ द शो एंड एंड ऑफ द क्लास। अब हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, फिर से पूरा एक बार देख लेते हैं। मनी M1 M2, M1 भी हो जाएगा, M2 हो जाएगा। M1 डॉट रीड मनी, इट विल गो टू एग्जिट रीड मनी विथ रिस्पेक्ट टू M1। इनपुट रुपीज पैसे, दो वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। सपोज हम लोगों ने इनपुट की 10 और 30, कैलकुलेट, it will come back, it will come back। M2 डॉट रीड मनी, अगेन रीड मनी, अब M2 के साथ तो जो भी वेरिएबल्स है सारे M2 के कंसिडर करेगा, तो फिर से करेगा इनपुट रुपीज एंड पैसे, सीन, फिर से ब्लिंकिंग कर्सर देगा, हमें फिर से दो वैल्यू इनपुट करेगी, इनपुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज फॉर RS एंड सेकेंड इज फॉर PS। तो हम लोग इनपुट क्या, सपोज 5 एंड 30, इट विल बिकम 5 एंड 30, टोटल पैसे इज 530। मैं थोड़ा जल्दी में ले रहा हूँ ताकि वो पुराना है, ये वापस आएगा, ये यहाँ वापस आएगा। फिर M1 डॉट शो मनी विथ M2, शो मनी के लिए जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू M1, M2 के साथ M2 की वैल्यू M को दी जाएगी, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी M2 की वैल्यू है वो M को दी जाएगी। इंटीजर t, एक वेरिएबल क्रिएट जाएगा t, उसकी वैल्यू है TPS प्लस M डॉट TPS, ओनली TPS। अब किसने कॉल किया है, M1 ने कॉल किया है, तो M1 के टोटल पैसे कंसिडर करेगा प्लस M डॉट TPS, ये कहाँ से यहाँ से, किसकी वैल्यू M2 की, तो ये और ये ऐड करेगा और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 51
60। बाद में आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर पी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर यह आएगा रुपीज इक्वल टू 15, पैसे इक्वल टू 60, टोटल पैसे इक्वल टू 1560। End of the function, it will come back. I can write here now. End. देख लेना क्या किया। देखो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बाद में देखेंगे। करने की जरूरत है क्या, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो सब कर रहे हैं वो समझ लेना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे अब यहाँ हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स किए, टी, आर एंड पी। टी हम लोगों ने टोटल पैसे के लिए, आर रुपीज के लिए लिया है, पी पैसे के लिए है। इसके बदले हम लोग कर सकते हैं मनी टेम। ये अलाउड है, ये अलाउड है। मीन्स हम लोग क्लास में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जब हो जाएगी तब ये फिर से क्रिएट करेगा टेम, जिसमें होंगे आर एस, पी एस एंड टी पी एस। वी कैन क्रिएट, हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं मेंबर फंक्शन में। अब इंस्टेड ऑफ टी आई कैन यूज temp डॉट tps इक्वल टू tps प्लस m डॉट tps। अब t की वैल्यू tps को दे रहे हैं हम लोग। जो पहले हम लोग पिछले पिछले प्रोग्राम में हम लोग जो t की वैल्यू कैलकुलेट की थी वह हम लोग दे रहे हैं tps को। एंड देन temp डॉट rs इज इक्वल टू temp dot tps divided by 100, temp dot ps is equal to temp dot tps mod 100, and then I can write here, इसी का कंटिन्यू है ना, सी आउट आर एस इक्वल टू temp dot rs ps is equal to temp dot ps total पैसे इक्वल टू temp dot tps। तो temp dot tps इक्वल टू tps प्लस m डॉट tps। ओनली tps किसने कॉल किया है, शो मंथ को m1। m की वैल्यू क्या है, तो ये ऐड करेगा temp डॉट rs इक्वल टू, तो ये कैलकुलेट करेगा टेम्प। ऑब्जेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड देन वी आर डिस्प्लेइंग इट, नो प्रॉब्लम, ये अलाउड है। हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट यूज भी कर सकते हैं, उसको वैल्यूज भी असाइन कर रहे हैं। हम लोग ओनली टीपीएस नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि ओनली टीपीएस आरएसपीएस लिया तो वो M1 के लेगा। हमें ये नए ऑब्जेक्ट ये सब चाहिए, इसलिए वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। टेम्प डॉट आरएस देख लेना, यहाँ सेमीकोलन दिया नहीं है इसलिए यहाँ सी आउट लिखा नहीं है। यहाँ अगर सेमीकोलन दिया तो यहाँ सी आउट लिखना जरूरी है।
देख लेना, समझ लेना। अब देखो, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बात बताया था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में बताया था कि जो भी हम लोग मेंबर फंक्शंस लिखेंगे, हर एक के लिए अलग अलग मेंबर फंक्शन लिखेंगे, हर टास्क के लिए अलग अलग मेंबर फंक्शंस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रीड के लिए अलग वीडियो है, सॉरी, रीड मनी के लिए अलग मेंबर फंक्शन है, कैलकुलेशन के लिए अलग मेंबर फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ आप लोगों ने देख लिया तो ये जो है शो मनी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट। इसमें दो हम लोगों ने पार्ट किया, एक क्या किया है, एडिशन किया है, यहाँ कुछ तो एडिशन किया हुआ है, और इसी में हम लोगों ने शो भी किया है। तो एक ही मेंबर फंक्शन में हम लोग मल्टीपल एक्टिविटीज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो जो है मेरे उसमें बताया था। लेकिन अभी हम लोग ये प्रोग्राम सीखते समय इसमें हम लोगों ने दो कंबाइन किया हुआ है। शो मनी में दो टास्क है, एक तो एडिशन है और ये प्रिंटिंग है। तो कभी भी हम लोग दो टास्क एक मेंबर फंक्शन में नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हम लोग करते हैं, इसका हम लोग नाम बदल देते हैं, इसको हम लोग करते हैं ऐड मनी। अब ऐड मनी क्या है, तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, अभी यहाँ करना पड़ेगा यहाँ करना पड़ेगा m1 डॉट ऐड मनी इन ब्रैकेट m2, ठीक है। शो के बदले ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने दो फंक्शंस कंबाइन किया, एक तो ऐड कर रहे हैं और ऊपर से शो भी कर रहे हैं। तो ऐड हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ऐड यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और ये शो जो है वो नया बनाएंगे, शो शो मनी। अब क्या होगा देखिए, समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं थोड़ा ये। समझने के लिए लिखा है। अब हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, m1 डॉट रीड मनी, m1 की वैल्यू रीड हो जाएगी, m2 डॉट रीड मनी, m2 की वैल्यू रीड हो जाएगी, मनी वन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, m1 डॉट शो मनी, इट विल गो टू एग्जीक्यूट शो मनी विथ रिस्पेक्ट टू m1, m1 के रुपीज पैसे टोटल पैसे डिस्प्ले करेगा, रुपीज इक्वल टू 10, पैसे इक्वल टू 30, टोटल पैसे इक्वल टू 1030।
and n will come back money to m2 dot show money। एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मैंने पूरा वीडियो बना दिया और बाद में चला कि पता चला कि ये पता किए नहीं, तो 2 घंटे जो भी किए तो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने चेक किया। ओके, मनी टू m2 डॉट शो मनी, फिर से शो मनी जाएगा, ये m2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। देन m1 डॉट एड मनी m2, गो टू एग्जीक्यूट एड मनी विथ रिस्पेक्ट टू m1, पास वैल्यू m2, m2 की वैल्यू दी जाएगी m को, ठीक है। टेम्प ऑब्जेक्ट बना दी जाएगा, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट होगी, इन इट विल कम बैक इन। प्रिंट कहाँ होगा, टेम्प की वैल्यूज प्रिंट कहाँ हो रही है, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं टेम्प डॉट शो मी, टेम्प डॉट शो मी, तो m1 dot add money m2, it will go to execute add money with respect to m1, it will pass value m2, m2 की वैल्यू आ जाएगी m में, टेम्प एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, उसमें ये वैल्यूज आ जाएगी, और टेम्प डॉट शो, ये शो कॉल करेगा टेम्प के हिसाब से, तो ये आर एस पी एस टी पी एस जो है वो टेम्प के कंसिडर करेगा। So it will print RS is equal to 15, पैसे equal to 60, total पैसे equal to 1560, and it will come back, and then it, देखो समझ आता है क्या, क्यों किया ये सब, किस लिए चल रहा है, पिछले आधे घंटे से हम लोग सीख रहे हैं, सीखने की क्या जरूरत है बताऊंगा, अभी आ गया सब बताने के लिए, रुको, लेकिन सिर्फ समझ लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ आता है कि नहीं, यही सिर्फ देख लेना, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ये जो आधे घंटे से चल रहा है ये क्यों चल रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। समझ आया यहाँ तक? ओके, अब मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ m3, तो m3 एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आएगा RSPS एंड TPS। अब जैसे हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं वैसे हम लोग वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना सी में वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से, वैसे ही मेंबर फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो हमने किया है ऑलरेडी, और हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं जो किया नहीं, ये अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है रीड मनी, आई एम डूइंग दिस एज नाउ, रिटर्न रिटर्न टेम्प, ठीक है। अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो वॉइड तो अलाउड नहीं है, instead of void now we have to write the data type of a variable whose value we are returning, but we are not returning a variable, we are returning a object, so we have to write the class of this returning object, we are returning temp class is money, so we have to write here so add money is a member function which receives one object as a money and it returns one object of class type money. Now here you are returning the value, so you have to receive the value, अब हमें रिसीव भी करनी पड़ेगी, तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ m3, m3 equal to m1 dot add money m2, now it will give, अभी ये जाएगा add money करने के लिए with m1 और ये पास करेगा वैल्यू m2, m2 की वैल्यू m में जाएगी,
टेम्प एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसमें सब एडिशन हो जाएगा और रिटर्न टेम्प टेम्प की वैल्यू आएगी M3 में। तो टेम्प की वैल्यू जो है वो M3 में आ जाएगी और हम लोग यहाँ कर रहे हैं M3 डॉट शो मनी। ये शो मनी क्या करेगा, रुपीज इक्वल टू 15, पैसे इक्वल टू 60, टोटल पैसे इक्वल टू 1560। So we can pass object as a parameter, we can return object as a parameter। किसी भी मेंबर फंक्शन को कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, किसी भी। अब देखो M1, M2 और M3 की वैल्यू चेक किए तो M3 की वैल्यू जो है M3 is nothing but M1 plus M2। M3 is equal to M3 is nothing but M1 plus M2। अब इतने से के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, जो भी आधे घंटे से हम लोग कर रहे हैं वो इसके लिए। M3 की वैल्यूज हम लोग कर रहे हैं M1 और M2 के एडिशन। तो ये क्यों किया, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जितने भी ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, बाइनरी ऑपरेटर हो, यूनरी ऑपरेटर हो, ये सारे ऑपरेटर्स सिर्फ वेरिएबल्स पे काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते। तो हम लोगों ने ये सब स्टेटमेंट अगर यहाँ लिखा होता M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 तो ये काम नहीं करता। प्लस साइन आ गया, वो देखेगा लेफ्ट और राइट में क्या है, लेफ्ट और राइट में दोनों ऑब्जेक्ट है तो एरर देगा। लिख के देखो, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, लिख के देखो क्या होता है। एनी ऑपरेटर, एनी, मैं बोल रहा हूँ एनी, कोई भी ऑपरेटर, वो रिलेशनल हो, वो लॉजिकल हो, वो बाइनरी हो, वो यूनरी हो, वो शिफ्ट ऑपरेटर हो, कोई भी ऑपरेटर हो, वो सिर्फ वेरिएबल पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल काम नहीं करता। और ऑब्जेक्ट पे अगर आपको कॉल करना है तो ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये अगर स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखा तो वो एरर देगा, ये रन नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में ये रन नहीं होता, इसलिए हमें ये प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐड मनी के बदले सिर्फ मैं यहाँ लिखता हूँ नाम प्लस, मैं लिखता हूँ मनी प्लस। और अगर मनी प्लस नाम लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, अभी ऐड मनी नहीं आएगा, M1 डॉट प्लस इन ब्रैकेट M2, M3 equal to M1 dot plus M2 means go to execute program written for plus with respect to M1 pass value by 2। लेकिन हम लोग प्लस यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करना, बिकॉज इट इज ऑपरेटर, अगर यूज करना ही है तो यहाँ यूज करने पड़ेगा हमें ऑपरेटर, वी हैव टू यूज इट एज अ ऑपरेटर प्लस, अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ ऑपरेटर प्लस लिखा तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है और ये लिखने की जरूरत नहीं है। M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 ये हम लोग लिख सकते हैं। नाउ दिस विल वर्क, अभी ये काम करेगा। अगर ये लिखा नहीं होता, पहले जैसे ऐड मनी था तो ये काम नहीं करता। अभी क्या हो रहा है, M3 इक्वल टू M1 प्लस M2, प्लस साइन आ गया, कंपाइलर क्या करेगा, प्लस साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा। यहाँ फिर से प्लस है, लेकिन TPS एंड m.tps दे आर मेमोरी वेरिएबल्स, तो ये अपना प्लस करेगा, खुद का प्लस करेगा। लेकिन ये जो है M3 इक्वल टू M1 प्लस M2
our program, it will go to execute our program. Normally plus operator normally plus operator works on a variable, सिंपल वेरिएबल, इट मे बी सिंपल वेरिएबल, इट मे बी मेमोरी वेरिएबल, जो भी है। लेकिन हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा टास्क दे रहे हैं, दिस इज द एक्स्ट्रा टास्क गिवन टू प्लस ऑपरेटर एंड दिस एड्स योर ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोग प्रोग्राम लिखा है ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो प्लस का रेगुलर वर्क है वैल्यूज ऐड करना, वेरिएबल्स ऐड करना, मेंबर वेरिएबल्स ऐड करना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ भी क्या किया है, ये प्लस से यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट एडिशन कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वी आर गिविंग एक्स्ट्रा टास्क टू द प्लस ऑपरेटर। सो व्हेनेवर वी आर गिविंग एक्स्ट्रा टास्क अदर देन रेगुलर, इट इज कॉल्ड एज ओवरलोडेड। जैसे होता है अगर आप काम कर रहे हो या फिर स्टाफ ने अगर कोई असाइनमेंट ज़्यादा दिया तो हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट बहुत ओवरलोड हो गया है, ओवरबर्डन हो गया असाइनमेंट्स का वगैरह। तो वैसे ही यहाँ है, प्लस के लिए नॉर्मल एडिशन है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है जो ऑब्जेक्ट ऐड करेगा। हम लोग एक्स्ट्रा टास्क दे रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दिस इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, M3 इक्वल टू M1 प्लस M2। अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दो ऑब्जेक्ट ऐड करेगा। समझ लो, चेक कर लो। बहुत ईजी है, चेक कर लेना। तो इसलिए जो भी हम लोग पिछले आधे घंटे से कर रहे थे, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है। ऑपरेट जो भी ऑपरेटर्स है, रिलेशनल हो, अरिथमेटिक हो, यूनरी हो, बाइनरी हो, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो सिर्फ वेरिएबल पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करते। C++ लो, जावा लो, C# लो और पाइथन लो, किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं होते। अगर उनको आपको ऑब्जेक्ट पे कॉल करना है या फिर ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करना है तो आपको खुद का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ये लिखा है। दैट मीन्स वी आर गिविंग एक्स्ट्रा टास्क to the operator. That's why it is called as the operator overloading. And this plus, minus, multiplication, division, these are arithmetic operators. So this is called as the arithmetic operator overloading. एक बार फिर से चेक कर लेना, समझ आता है क्या। माइनस का भी इजी है, या हम लोगों ने माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज अ माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये एक ध्यान में रखना, मैंने यहाँ प्लस किया है और अंदर माइनस किया है, ये वर्क होता है क्या, होता है, चेक करके देख लेना। क्योंकि क्या है, कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स चेक करता है कि आपके सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं, ये बाकी कुछ नहीं देखता। यहाँ प्लस लिखा है, अंदर माइनस है, वो चेक नहीं करेगा ऑपरेटर। कंपाइलर कंपाइलर सिर्फ चेक करता है आपने जो भी लिखा है वो सिंटैक्स के हिसाब से सही है कि नहीं है, लॉजिक क्या है वो नहीं देखता। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लिखा है M3 इक्वल टू M1 प्लस M2, यहाँ आएगा, लेकिन एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। होगा, करके देख लेना, या फिर
माइनस किया है और अंदर जाके प्लस किया, ये वर्क होगा क्या? होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा रन। लेकिन ये गलत है, ऐसे कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन हो सकता है, एक बार करके देखना होता है। सो दिस इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, अब सपोज दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रिलेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? पहले ये मैंने किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, प्लस और माइनस आपको बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद से कर लेना, उसके हिसाब से ही होगा। नाउ माइनस किया, अब रिजल्ट क्या आएगा इसका? माइनस का ये आएगा 50000। फॉरगेट आउट रेस्ट, मैं ये बाकी का कुछ नहीं कर सकता, अब ये छोड़ देना। क्या है क्या नहीं है वो छोड़ देना, ठीक है? ये आएगा रिजल्ट। अगर ऐसा है सपोज, तो अभी क्या है, टोटल पैसे क्या है? 1030 माइनस 580, तो ये आएगा 450, 450, ये आ जाएगा 45450। लेकिन अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? 1030 1580 माइनस माइनस 450 आ जाएगा। क्या ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा? ठीक है, तो आएगा माइनस माइनस माइनस, जो भी कैलकुलेशन है फॉरगेट अबाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? m1 माइनस m2, वी आर डूइंग m1 माइनस m2। अगर m1 बड़ा है तो रिजल्ट प्लस आएगा, m2 बड़ा है तो रिजल्ट माइनस आएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए, रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब m1 अगर बड़ा है तो कर देना m3 इक्वल टू m1 माइनस m2, और अगर m2 बड़ा है तो करना पड़ेगा m2 माइनस m1, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट रिजल्ट टू बी पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? रिजल्ट निगेटिव आएगा, करके देख लेना। m2 की वैल्यू बड़ी दे देना तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो मुझे अभी क्या करना है? मुझे ऐसे प्रोग्राम लिखना है जिसमें रिजल्ट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो हमें पहले देखना पड़ेगा m1 बड़ा है या m2 बड़ा है। अगर m1 बड़ा है तो m2 m1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर m2 बड़ा है तो m1 m2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल हम लोग क्या कर सकते हैं सी में, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, प्लस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस के लिए प्रॉब्लम। हमें अगर रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, ये करना पड़ेगा। if m1 minus m2 then m3, if m1 is greater than m2 then m3 equal to m1 minus m2, else m3 equal to m2 minus m1। जिसका भी बड़ा है, जो भी बड़ा है उसमें से हमें छोटा जो है, छोटा है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही आने वाली है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर वर्क्स ओनली ऑन वेरिएबल्स, नॉट ऑन ऑब्जेक्ट्स। M1 M2 ऑब्जेक्ट्स है, तो इसे हम लोग कर नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हम लोग कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज वो वर्क नहीं होते, बिकॉज दे आर ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट पे कभी भी कॉल नहीं होता। तो अभी क्या करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ। इसके लिए हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी, ये प्रोग्राम है यहाँ, इसके बाद मेन प्रोग्राम आएगा। तो कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, M1 बड़ा है या M2 बड़ा है, ये किसके ऊपर डिसीजन होगा, ये डिसीजन होगा टीपीएस के ऊपर। जिसका भी टीपीएस बड़ा है वो ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ, इफ M1 डॉट TPS is greater than M2 डॉट TPS, M3 equal to M1 minus L2, else M3 equal to M1 minus M2। अगर M1 का TPS बड़ा है तो M1 बड़ा है, so M3 equal to M1 minus M2। अगर वो छोटा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, वो एल्स के लिए जाएगा, M3 equal to M2 minus M1। ये हमें करना है, क्योंकि जिसका टीपीएस बड़ा है वही ऑब्जेक्ट बड़ा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, ये हम लोग स्टेटमेंट कहाँ लिखने वाले हैं, मेन प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। अब मेन प्रोग्राम में टीपीएस एक्सेस हो सकता है क्या, नहीं एक्सेस हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्कोप प्राइवेट है, इट इज अ प्राइवेट मेमोरी वेरिएबल। तो अगर ये हमें करना है तो हमें ये टीपीएस यहाँ से निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा, इंटीजर टीपीएस। तो ये हो सकता है, अब हो सकता है, क्योंकि पब्लिक मेंबर फंक्शन एंड पब्लिक मेमोरी वेरिएबल वी कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मेमोरी वेरिएबल। उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। मीन्स M1 डॉट रीड मनी, M2 डॉट रीड मनी, if M1 dot TPS is greater than M2 dot TPS, M3 equal to M1 minus M2, else M3 equal to M2 minus M1, and then M3 dot show money। ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो है वो टीपीएस पे काम कर रहा है, और टीपीएस क्या है, मेंबर वेरिएबल है। तो ये मेंबर वेरिएबल पे बराबर काम करता है, इट वर्क्स ऑन अ मेंबर वेरिएबल परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। लेकिन 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 हम लोग कभी भी मेंबर वेरिएबल जो है वो हम लोग प्राइवेट नहीं करते, क्योंकि जब तक कोई और पॉसिबल वेज नहीं है, जब तक कोई और पॉसिबल वेज नहीं है, तब तक हम लोग मेंबर वेरिएबल्स कभी भी पब्लिक नहीं करते। तो इसीलिए ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्कोप फिर से हम लोगों ने प्राइवेट किया है। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि टीपीएस तो कंपेयर करना पड़ेगा ही, और जब तक टीपीएस कंपेयर नहीं करते तब तक कुछ होने वाला है ही नहीं। तो और एक मेथड है, और एक, ये फाइनल नहीं, बट और एक हम लोग कर सकते, क्या कर सकते हैं, तो हमें टीपीएस ही चाहिए, तो हम लोग रीड मनी ऐसे कर सकते हैं, रीड मनी से टीपीएस रिटर्न करो। लेकिन मेन प्रोग्राम बदलना पड़ेगा, फिर मेन प्रोग्राम करना पड़ेगा
या हमें मेन प्रोग्राम में करना पड़ेगा। इंटीजर t1 इक्वल टू m1 डॉट रीड मनी, इंटीजर t2 इक्वल टू m2 डॉट रीड मनी। ये इससे बदले हम लोगों ने ये जो हमने भी किया है इसके बदले ये करना पड़ेगा। और ये जब जाएगा इंटीजर m1 डॉट रीड मनी, इट विल गो टू एग्जीक्यूट रीड मनी विथ रिस्पेक्ट टू m1। यहाँ जाएगा, रुपीस पैसे रीड करेगा, कैलकुलेट विल कैलकुलेट टोटल पैसे, वापस आएगा, रिटर्न टीपीएस t1 में आएगा, देन m2 के लिए जाएगा और t2 में आएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं इफ t1 is greater than t2, m3 equal to m1 minus m2, else m3 equal to m1 minus t1 में आएंगे m1 के टीपीएस, t2 में आएंगे m2 के टीपीएस। अगर t1 बड़ा है तो m1 बड़ा है, अगर t2 बड़ा है तो m2 बड़ा है। ये हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड बेस्ट है और क्या करना है, चेक कर लेना सिर्फ। लेकिन ये भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में बताया था, ये क्लास राइटर लिखने वाले अलग लोग होते हैं, मेन प्रोग्राम लिखने वाले अलग लोग होते हैं। ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। पहले सपोज हम लोगों ने रीड मनी पहले जैसे लिखा, जैसे पहले था वैसे हम लोग ने लिखा है, और बाद में इसके लिए हम लोगों ने चेंज किया। पहले प्रोग्राम लिखा, मैं खुद से क्लास राइटर हूँ, मैंने वो क्लास लिखा, और कुछ जूनियर प्रोग्रामर्स है वो क्लास यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट आई ये सब्ट्रैक्शन की, फिर ये मैंने चेंज कर दिया। अब नए यूजर ये यूज करने लगे, तो जो पुराने वाले थे यूज, वो अब कंप्लेंट करने लगे, अरे सर आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो रन नहीं कर रहा है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमें तो वैल्यू रिटर्न चाहिए ही नहीं है, वी डोंट वांट टू रिटर्न ए वैल्यू, हम लोग हमें रिसीव ही नहीं करनी है, तो हम लोग आप रिटर्न क्यों कर रहे हो। तो इसलिए ये मेथड है, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं वो अगर यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसा अगर कोई जूनियर प्रोग्रामर है जिसको सिर्फ वैल्यू रीड करनी है और डिस्प्ले करनी है, उसको रिटर्न बिटर्न से कोई मतलब नहीं, तो हम लोग ये नहीं कर सकते अभी राइट नाउ। तो हम लोग तीसरा मेथड चेक करेंगे। क्या मेथड चेक करेंगे कि हम लोग अभी क्या करेंगे, ये अभी पूरा मैं चेंज करता हूँ, मेन प्रोग्राम भी। ठीक है, अभी ये भी मैं चेंज करता हूँ, ये अभी लेता हूँ मैं क्लास में। मैं क्या करता हूँ, एक मैं कंपेयर लिखता हूँ, कंपेयर, और चेक करता हूँ मैं, चेक चेक ग्रेटर फंक्शन में लिखता हूँ, चेक ग्रेटर फंक्शन। so I will call this m1 dot check greater, go to execute check greater with respect to m1, pass value m2, वैल्यू पास कर रहे हैं तो वैल्यू रिसीव करनी जरूरत है, दैट इज m1। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें 2 वैल्यूज मिल जाएगी, tps एंड m डॉट tps। tps किसकी वैल्यू होगी, m1 की वैल्यू होगी tps, और m डॉट tps किसकी वैल्यू होगी,
m2 की वैल्यू। तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर है क्या, TPS is greater than m dot TPS. Only TPS means m1. M dot TPS means m2. If it is greater, written 1, else, okay, else written 0. We are returning value, so we have to write integer. ठीक है। सो हम लोगों ने एक मेंबर फंक्शन लिखा है चेक ग्रेटर m1 dot check greater m2. So go to execute check greater with respect to m1, pass value m2. m2 की वैल्यू दी जाएगी m को, ठीक है। और tps means m1 dot tps, if it is greater than m dot tps return 1, that means m1 is greater. अगर नहीं है तो return 0, that means m2 is greater, and that value we take into some variable, that is into c. Integer c equal to m1 dot check greater m2. और अगर c की वैल्यू 1 है, that means m3 equal to m1 minus m2. If c equal to 0, that means m3 equal to m2 minus n1, m3 dot m3 dot show my. Integer c equal to m1 dot check greater m2. Go to execute check greater with respect to m1, pass value m2. n2 will be given to the m. So TPS is greater than m dot TPS. Only TPS, that is m1. m dot TPS m2. Whether m1 dot TPS is greater than m2 dot TPS, return 1. नहीं है तो रिटर्न 0. तो अगर 1 है, that means m1 is greater, m3 equal to m1 minus m2. अगर 0 है तो m3 equal to m2 minus m1, m3 dot show 1. So this is subtracting smallest from largest. जो स्मॉलर है वो लार्जर से सबट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अगर हमें ये चाहिए तो। नहीं तो आप लोग पिछले जैसा कर सकते हो, m1 माइनस m3 इक्वल टू m1 माइनस m2, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ एक तो वो रिटर्न करेगा 1 और 0, so here we can write as a else. Here we can write this as a else. अब ये हम लोग वैल्यू ले रहे हैं C में और C की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। We are comparing value of C with 1. If C equal to 1, तो ये if C equal to 1 लेने की जरूरत नहीं है, we can write it as a if C, no problem. Equal to 1 लिखने की जरूरत नहीं है. This means it works. If C is 1, it will execute this. Otherwise, it will execute this. देख लेना, समझ आ रहा है क्या, चेक कर लेना क्या किया है। ठीक है। अब ये वैल्यूज C में लेना और फिर C कंपेयर करना, इसके ये दोनों के बदले मैं एक ही स्टेटमेंट लिख सकता हूं, if m1 dot m1 dot check greater m2, वो वैल्यू C में लो फिर C कंपेयर करो, इसके बदले ये किया है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं,
whether TPS is greater than m dot TPS, whether TPS is greater than m dot TPS, इसलिए क्या है चेक ग्रेटर। इसके बदले मैंने ये नाम बदल दिया और कर दिया ग्रेटर देन। तो यहाँ क्या होगा नाम, मैंने नाम चेंज कर दिया। अब ये नाम तो हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि ये ऑपरेटर है, तो वी कैन राइट हियर। अगर देना है तो ये लिखो इंटीजर ऑपरेटर ग्रेटर देन। अब यहाँ इंटीजर ऑपरेटर दिया तो ये देने की जरूरत नहीं है और ये देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कंसिडर करेगा। सो दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग ग्रेटर देन। सिमिलरली यू कैन चेक लेस देन, यहाँ लेस देन है तो यहाँ लेस देन, यहाँ जो भी सही है वो यहाँ करेगा। दिस इज अ relational operator overloading. This concept is relational operator overloading. If m1 is greater than m2, it will check greater than sign। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये अपने पास आएगा, या हमने प्रोग्राम लिखा है। तो दिस इंडिकेट्स गो टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम रिटर्न फॉर ग्रेटर देन साइन विथ रिस्पेक्ट टू m1, पास वैल्यू m2, m2 के लिए आएगी m में। If TPS is greater than m dot TPS, only TPS that is from m1, m dot TPS that is from m2, return 1, return 0, जो भी है 1 और 0 यहाँ वापस if में आएगा। So if 1 it will execute this, if 0 it will go to the else, it will execute this and it will display m3 dot show money। ठीक है, देखो तो ये प्रोग्राम क्या है, read two objects and find out difference of two objects, difference must be positive। अब डिफरेंस के लिए ये किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने ये चेक किया है विच इज ग्रेटर। दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो समझ आता है क्या, इसका हम लोग यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये सारे एक ही प्रोग्राम में होने चाहिए। प्रोग्राम जहां हमें जरूरत है वहां हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही में चाहिए, जहां चाहिए वहां आप लोग यूज करो। ये मैंने समझाया, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी ये चेंज करता हूँ, मैं ये सब रुकिए, फॉरगेट अबाउट माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ इंटीजर ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर ग्रेटर देन मनी m, TPS is greater than m dot TPS, return 1, else return 0। मैंने ये निकाल दिया अभी यहाँ से। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, चार ऑब्जेक्ट्स बना दिए, फॉरगेट अबाउट ये सब, अभी इसकी जरूरत नहीं है।
यानी M1, M2, M3, M4. I want to read three objects. M1 dot read money, M2 dot read money, M3 dot read money. M1 रीड किया, M2 रीड किया, M3 रीड किया. अब मुझे इसमें से लार्जेस्ट चाहिए. रीड थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट. तो जैसे हम लोग थ्री नंबर्स का करते हैं ना, इफ n1 is greater than n2, max equal to n1, else max equal to n3, n2, if n3 is greater than max, max equal to n3. जैसे दो नंबर्स का, अब ये सी का लॉजिक है. रीड थ्री नंबर्स एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, वो सी का लॉजिक है. जैसे फिर ये कंपेयर n1 विथ n2, जो भी लार्जेस्ट है n1 n2 वो मैक्स लेना है, और अगर n3 ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स इज लार्जेस्ट. ये सी का लॉजिक है. अब ये हमें ऑब्जेक्ट में करना है. तो व्हाट वी कैन डू इज, इफ m1 is greater than m2, find out, read three objects of a money class and find out largest object. m1 रीड किया, m2 रीड किया, m3 रीड किया. then if m1 is greater than m2, max is m1, else max is m2. if m3 is greater than max, then max equal to m3, m3 dot show money. यहाँ एल्स लिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है रिलेशनल ऑपरेटर ओनली. अभी इसमें अरिथमेटिक वगैरह नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं है. वैसे अगर क्वेश्चन है रीड टू मनी ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड आउट डिफरेंस, डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव, तो वहाँ माइनस ऑपरेटर भी लिखना पड़ेगा और ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रेटर कौन सा है देखना पड़ेगा. सपोज क्वेश्चन है, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि रीड टू ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड आउट एडिशन, तो सिर्फ प्लस ऑपरेटर करना पड़ेगा. अब ऐसा क्वेश्चन है रीड थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट, तो इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं आएगा, सिर्फ वो लार्जेस्ट का आएगा. मनी ग्रेटर देन मनी एम. ये लॉजिक मैं समझा नहीं सकता, ये सी का लॉजिक है. m1 डॉट रीड मनी, m2 डॉट रीड मनी, m3 डॉट रीड मनी, तीन ऑब्जेक्ट रीड कर लेना, पहले दो कंपेयर कर लेना और जो मैक्सिमम है वो थर्ड से कंपेयर कर लेना है. समझ आएगा, देख लेना. देखो लॉजिक कौन सा कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, हम लोग बता नहीं सकते. वो जिस जिस जगह चाहिए वो हम लोगों को करना है. ठीक है, होप सो ये समझ आया होगा. अब हम लोग करते हैं अभी हम लोग बना रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. What I want to do, I want to read 10 objects and I want to find out smallest object of a money class. इसलिए बना दिया एरे M10.
और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए बना दिया मीन। तो मीन में भी आएगा रुपीज पैसे एंड टोटल पैसे। ठीक है, अब यहाँ आर वेरिएबल यूज किया है, इंटीजर आर। तो मैं यहाँ करूँगा आर इक्वल टू 0, आर इज लेस देन 10, आर प्लस प्लस एम ऑफ आर डॉट रीड मीन। तो पहले आर 0 है, तो एम 0 की रुपीज पैसे रीड करेगा, टोटल पैसे कैलकुलेट करेगा। आर प्लस प्लस आर बिकम्स 1, M1 के पैसे रीड करेगा, आर बिकम्स 2, M2 के लिए करेगा, आर बिकम्स 3, M3 के लिए करेगा, ऐसे वो करते जाएगा। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर सिर्फ डिस्प्ले करने हैं तो आप डिस्प्ले कर सकते हो, और आर इक्वल टू 0, आर इज लेस देन 10, आर प्लस प्लस एम ऑफ आर डॉट शो मनी। आप यहाँ यूज करना लेफ्ट, एक ही लाइन पे आएगा वो। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स रीड करेगा, 10 ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ऐसे हमें पूछा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑब्जेक्ट्स array of 10 objects of a money class or a distance class or weight class, read and display, तो सिर्फ रीड और डिस्प्ले का आएगा, ये आएगा ही नहीं बीच में, यही आएगा रीड एंड डिस्प्ले मैटर क्लोज। लेकिन हमें रीड 10 करने हैं, डिस्प्ले 10 करने हैं, उसमें से मिनिमम अगर डिस्प्ले करना है तो फिर मिनिमम चेक करने के लिए हमें फिर ये लिखना पड़ेगा। ये मैक्सिमम के लिए था, अब ये मिनिमम के लिए है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा मिनिमम 10 के लिए। अब कैसे हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले पहला स्मॉलेस्ट कंसीडर करो, थिंक फर्स्ट एज द स्मॉलेस्ट एंड देन कंपेयर दिस विथ रिमेनिंग। इफ सॉरी आर इक्वल टू 1, आर 1 क्यों लिया, क्योंकि 0 ऑलरेडी लिया है। इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन एम ऑफ आर, देन मिनिमम इक्वल टू एम ऑफ आर। अगर मिनिमम वो नेक्स्ट से ज्यादा है तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, फाइंडिंग मिनिमम मैक्सिमम वगैरह वगैरह, ये अभी मैं यहाँ क्लियर नहीं रहा हूँ। एंड देन वी कैन यूज वी कैन डिस्प्ले स्मॉलेस्ट। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ये करता हूँ। सो हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग, वी आर ओवरलोडिंग लेस देन रिलेशन ऑपरेटर। सॉरी ना, यहाँ थोड़ा अलग हो गया, सॉरी। सो रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेस देन, ये अरे में से अगर 10 निकालने हैं तो पहले वाला था 3 में से मैक्सिमम निकालना है, ये अरे में से मिनिमम निकालना है। देखो प्रोग्राम, ओके नाउ this is about two types of operator overloading. Arithmetic operator overloading, we have checked plus minus, and second is relational operator overloading, less than and greater than I have shown you, you can write the remaining. Now next is binary operator overloading.
बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सपोज अब our statement is like a is equal to b plus c. We are considering all the variables. Now this, it operates on a and b, and result is given to, it operates on b and c, and result is given to a. So three variables are involved. For this arithmetic operator plus, three variables are involved where we are adding b and c, and result is given to a. But if our statement is like a is equal to a plus b, value of a and b will be added, and again result is given to a. Only two values are involved, a and b. Here three values are involved, a, b variables. Only two variables are involved, a and b. So this we can write as a plus is equal to, this is called the binary operator. Plus equal to, minus equal to, multiply equal to, division equal to, mod equal to. These are binary operators which works on only two values. So what I want to do is, if our statement is m1 plus m2, this already we have checked how to overload plus operator. Whatever value of m1, it will be added with m2, and result is given to again m1. This already we have checked arithmetic operator. But this statement, we have to write it like this as a programming fundamentals. m1 plus is equal to m2. But this plus equal to works on only variables, not on objects. So we have to write program for this. So what I want to do here is m1 plus is equal to m2, and then I want to display result in m1. Now इसका मतलब क्या है, a plus is equal to b. इसका मतलब क्या है, जो भी a की वैल्यूज है उसमें b की वैल्यूज ऐड करो और रिजल्ट फिर से a में दो। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, m1 के tps प्लस m2 के tps ऐड कर देना और वो m3 के tps को दे देना, जैसा हम लोग पिछले किया था, tps प्लस m डॉट tps, एंड रिजल्ट इज गिवन टू m3। अब यहाँ क्या करना है, m1 के tps प्लस m2 के tps ऐड करना है और रिजल्ट फिर से m1 को देना है। ठीक है, हम लोग पहले कैसे कर सकते थे, प्लस में क्या कर सकते थे, क्या करते थे, टेम्प डॉट tps इक्वल टू tps प्लस m डॉट tps, प्लस ऑपरेटर ऑलरेडी में हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्प डॉट tps इक्वल टू tps प्लस m डॉट tps। ये m1 के tps, ये m2 के tps वो ऐड करके टेम्प में दे देते और रिटर्न टेम्प करते थे।
अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टीपीएस प्लस एम डॉट टीपीएस, M1 के टीपीएस बिकॉज वी आर कॉलिंग विथ रिस्पेक्ट टू M1, एम डॉट टीपीएस वो M2 की टीपीएस है और फिर से किस में चाहिए, हमें M1 में चाहिए, सो दैट इज टीपीएस इक्वल टू, अब हमें टीपीएस में आ गया है रिजल्ट, तो रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें रिजल्ट M1 में ही चाहिए। इसमें कैसे था, रिजल्ट हमें M3 में चाहिए था, यहाँ रिजल्ट M1 में ही चाहिए एंड दैट ऑलरेडी वी हैव डन। सो we are not returning any value because we want result into M1 only. Operator plus equal to, so go to execute plus equal to with respect to M1 pass value M2, M2 के लिए M में आ जाएगी और यहाँ आएगा TPS इक्वल टू TPS प्लस M डॉट TPS, क्योंकि रिजल्ट हमें फिर से M1 में चाहिए तो M1 का TPS प्लस M2 का TPS और रिजल्ट फिर से M1 का TPS। अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं TPS प्लस इज इक्वल टू M डॉट TPS। अब टोटल पैसे कैलकुलेट कर लिए तो रुपीज और पैसे भी फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग भूल जाते हैं। So this is a binary operator overloading with money class. Calculate, read money, show money, binary operator overloading and main program. इसके नीचे main program आएगा। Same you can write for minus equal to. प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, प्लस इक्वल टू बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर माइनस इक्वल टू करना है तो यू कैन यूज माइनस इक्वल टू। और अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, इफ वी वांट रिजल्ट ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ if M1 is greater than M2, अब यहाँ लिखना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा मनी M TPS is greater than M dot TPS, return 1 else return 0।
माइनस इक्वल टू एंड रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव। तो फिर से देखना पड़ेगा m1 और m2 से बड़ा कौन सा है और उसमें से वो छोटा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो भी रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। चेक कर लेना। तो ये सब अलग अलग समझने पड़ेंगे हमें, जो भी रिलेशन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, अलग अलग समझने पड़ेंगे और फिर बाद में देख अगर रिक्वायरमेंट आई तो सिर्फ कंबाइन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में कंबाइन हो ही, वो डिपेंड्स हमें कंबाइन करना है नहीं करना है, वो सब रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें डिपेंड है। तो एक बचता है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, प्री एंड पोस्ट, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो थोड़ा लेंदी कंसेप्ट है। उसका मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाता हूँ, कुछ दिनों के बाद बनाता हूँ, कल बनाता हूँ, फिर वो अपलोड करता हूँ, लेकिन ये तब तक समझ लें। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज नो object oriented programming language provides you facility to operate your operators, any type of operators on objects. They operates only on variables, so we have to write it. Just check this. थैंक यू वेरी मच। अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आगे के वीडियोस है, नॉट ओनली सी प्लस प्लस, हो सकते हैं पाइथन के है, ओरेकल, माई एसक्यूएल सर्वर या डॉट नेट, जो भी है, आपको जब भी मैं इंक्लूड करूँगा यूट्यूब पे तो आपको समझ आएगा। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लेना और अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर लेना ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ आए। थैंक यू वेरी मच।